Standard 9 English, lesson number 1.2, first unit, second lesson. A synopsis, The Swiss Family Robinson. The lesson's name is A Synopsis, The Swiss Family Robinson. Let's start the lesson. Synopsis means what? What is the meaning of synopsis? My dear children, before starting the lesson, I want to tell you one thing, that whatever meaning, the meaning of any word, if while explaining this lesson, if I say the meaning of any word, please note that word in the textbook itself, otherwise write the meanings in separate book. It is it is a nice idea, it is very good to write the meanings in the textbook itself. If you don't have a textbook with you, then better you write the words in another book and write the meanings. Okay, as soon as I explain the meaning of any word, in every word, please write the word and its name on the spot. It will help you whenever you revise the lesson. Okay, let's start now. The Swiss Family Robinson is a well known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. The Swiss Family Robinson. The family is of Robinson. अभी कोई फैमिली के बारे में बोलते, पीटर्स फैमिली, वर्गीस फैमिली या गायकवाड़ फैमिली, ऐसा. दिस फैमिलीज नेम इज रॉबिन्सन फैमिली. They are belonging to Swiss. Swiss means Switzerland. So, is well-known adventure novel. This novel, the name of the novel is Swiss Family Robinson. वो novel, novel means a long story को कहते हैं novel. और कैसा नॉवल है? इट्स एन एडवेंचरस नॉवल. एडवेंचरस मतलब कोई बड़ा कुछ डेंजरस काम, बहुत ही डेंजरस और एंथुसियास्टिक काम कुछ होता है तो उसे एडवेंचरस कहते हैं. अपना जान को खतरे में डालते हुए कुछ करते तो दैट इज कॉल्ड एडवेंचर. सो इट्स एन एडवेंचरस नॉवल दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 ईयर्स. बहुत सारे देश के लोग ये स्टोरी को, ये नॉवल को hundreds of years, to more than 200 years से enjoy करते आ रहे. Means they continuously read this novel. So it's a wonderful novel, adventurous one. It has also been made into graphic novels and films. What do you mean by graphic novel? That means comic book having full of different kinds of stories, pictures and all. तो वैसा graphic novels भी इससे बना हुआ है और इसी स्टोरी का, इस नॉवल का फिल्म्स भी बना हुआ है. ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. द नॉवल रिटन बाय स्विस क्लर्जी मैन जोआन डेविड विज. हु रॉट दिस नॉवल, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन? It is written by Swiss clergyman. Clergyman means the priest of a church. Church ka priest, father. So the writer Johann David Wyss was a clergyman, was a priest. Is not just an adventure. Don't think that if it is described as an adventurous story, don't think that it's a mere adventure. It's just an adventure. It is not only a adventure. सिर्फ adventure ही नहीं. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. So ये सिर्फ एडवेंचर ही नहीं है. इस नॉवल के ज़रिए राइटर क्या क्या करना चाहते हैं? He tries to, the writer, the author tries to teach young people, नया जनरेशन को सिखाना चाहते हैं values like self-reliance. What do you mean by self-reliance? Standing on our own capacity. We are doing everything on our own capacity. Depend on oneself. अपने आप पर निर्भर रहना, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना, खुद के पैरों पे खड़े होना बोलते हैं ना हम. तो self-reliance, that quality is called a self-reliance. Again I am telling you the meaning of self-reliance. Depend on oneself, one's own power. Depend on one's own power. So self-reliance, determination. What do you mean by determination? Firmness. कोई एक डिसीजन लिया तो उस पे डटे रहना, उस पे अटल रहना. That is determination. And love for your family. साथ साथ
अपने परिवार के लिए प्यार. कोऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेशन? कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ ईच अदर्स हेल्प. एक दूसरे का मदद करके साथ में काम करना, हाथ बटाना, सहायता करना, कोऑपरेशन. एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्स का प्रूडेंट मीन्स केयरफुल एंड मैक्सिमम यूज. अपने हाथ में मिलने वाला रिसोर्स यानी नेचर में से जो चीज़ें मिलते हैं उसको किस तरह वाइसफुल यूज़ किस तरह करना है, ये सभी वैल्यूज़ the writer, the author Joanne David Weiss is trying to teach young people. Okay. It also has a good lessons. Also has good lessons relevant in natural sciences, good husbandry and even mathematics. ये पोएम, ये स्टोरी, सॉरी, ये नॉवल में कुछ अच्छे अच्छे लेसन्स भी है. रिलेवेंट मीन्स क्लोजली रिलेटेड टू नेचुरल साइंस. नेचर और नेचर से रिलेटेड साइंस के एकदम करीब कुछ लेसन्स भी हमें दिया हुआ है. गुड हस्बेंड्री, व्हाट डू मीन बाय हस्बेंड्री? रेसिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. हस्बेंड्री मीन्स रेसिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. दैट मीन्स जानवरों को पालना, मुर्गी, बकरी, गाय, ये सब मीन्स रेयरिंग living things here, animals or birds for the benefit of human being. इंसान के फायदे के लिए एनिमल्स या बर्ड्स को पालना, दैट इज कॉल्ड हस्बेंड्री. सो गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स. यानी इस नॉवल के ज़रिए द ऑथर इज ट्राइंग टू टीच अस या टीच द यंग जनरेशन द वैल्यू ऑफ गुड हस्बेंड्री, natural science and even mathematics too. Some elements of novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Some elements of the novel do stretch a reality to certain extent. इस एलिमेंट, इस नॉवल के अंदर कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इट इज़ डू स्ट्रेच, मतलब ज़रूर हमें ले जाते हैं रियलिटी पर. यानी ये नॉवल अगर हम रीड करोगे, वाइल रीडिंग दिस नॉवल वी फील लाइक समथिंग इन सम इंसिडेंट्स इन द नॉवल इज जस्ट लाइक अ रियलिटी. हमें लगेगा कि ये सचमुच में हुआ है. बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन. लेकिन आपको समझना चाहिए कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्शन? फिक्शन मीन्स दैट लिटरेचर वर्क विच डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट. यानी जिसके अंदर इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक चीज़ों को, काल्पनिक इवेंट को, काल्पनिक इंसिडेंट्स को बताते हैं. दैट मीन्स नॉट रियल. वो इंसान अपने कल्पना से निकाला हुआ, दैट इज फिक्शन. लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन. सो ये इट इज़ अ रियल वर्क ऑफ फिक्शन, नॉट अ रियल इंसिडेंट एंड नॉट अ फैक्ट फाइल. फैक्ट फाइल मीन्स रियलिटी, जो रियल में है उसको फैक्ट फाइल कहते हैं. गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस. Synopsis means an outline of its basic story. Synopsis means a brief summary. Synopsis means a brief summary. ये एक बड़ा सा स्टोरी का एक छोटा सा समरी मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म. ऐसे पूरे रीड करने के बाद, स्टोरी पूरे पढ़ने के बाद उसका एक शॉर्टली एक एक्सप्लेनेशन देना, दैट इज सिनॉप्सिस. ब्रीफ समरी, ब्रीफली ऐसा बताना, पूरे डिटेल में नहीं. एक नॉवल को डिटेल में रीड करने जाएंगे तो पूरे ऑलमोस्ट दिन, मतलब कई दिन लग जाएंगे. तो यहाँ पर ये छोटा सा उसका समरी दिया हुआ है. सो द समरी बिगिंस लाइक दिस. विलियम, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. यहाँ पर हमारा स्टोरी के अंदर के जो कैरेक्टर्स है, वन इज विलियम, नेक्स्ट एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन. विलियम एंड एलिजाबेथ, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, and their children had been traveling, मतलब ट्रैवल करते जा रहे थे, in a ship, एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे. when the ship was caught in a great storm, इतने में क्या हुआ? during the voyage means traveling through ship. तो शिप से जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो the ship caught in a storm, एक बड़ा सा तूफान में उलझ गया शिप. the other passengers evacuated without them. और पैसेंजर्स भी थे शिप में. दे इवैक्यूएटेड मीन्स रिमूव द प्लेस, रिमूव फ्रॉम द प्लेस, यानी उधर से निकल गए.
विदाउट देम, यानी ये जो फैमिली है विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन, उनको छोड़कर, उनको शिप में ही छोड़कर बाकी लोग निकल गए. मे बी दे माइट हैव यूज्ड लाइफ बोट और वॉट एवर इट इज़. उन लोग एक तो लाइफ बोट यूज़ किए होंगे, निकल गए लेकिन शिप में से. सो कौन बचा शिप में? ओनली द शिप वॉज लेफ्ट विथ विलियम एलिजाबेथ एंड द चिल्ड्रन. William and his family, including the young children Fritz, Ernest, Jack, and Franz, were left to survive alone. विलियम और उनके फैमिली में उनकी वाइफ एलिजाबेथ आती है एंड दे हैव 4 चिल्ड्रन, ऑल आवर यंग, सभी यंग बच्चे हैं. फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन. उन लोग बच गए टू सर्वाइव. सर्वाइव मीन्स क्या होता है? एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कंटिन्यू टू लिव. सर्वाइव मीन्स एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कंटिन्यू टू लिव. एक बहुत ही खतरा वाला सिचुएशन से बचकर कंटिन्यू जीना, दैट इज सर्वाइव. सो दे सर्वाइव्ड अलोन. बाकी लोग शायद शिप में से गिर गए हो और मर भी गए हो. ओनली वन फैमिली इज लेफ्ट इन द शिप. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. शिप में ही उन लोग वेट किए. They weathered the great storm. ये बड़ा तूफान को weathered मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि weather beaten, यानी मौसम को झेलना. ये स्टॉर्म को झेलते हुए उन लोग शिप में रहे. The ship survived the night. पूरा रात गुजरा. शिप टूटा बिटा है नहीं, पूरा रात चले गए. And the family found themselves within sight of a tropical desert island, the next island. Actually उधर एक full stop होना चाहिए था. The ship survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. रात गुजरने के बाद वो फैमिली, कौन सा? विलियम का फैमिली, अपने आप को किधर पाया? विद इन द साइट ऑफ, यानी उनके नज़र में क्या दिखने लगा? एक ट्रॉपिकल आइलैंड दिखने लगा. व्हाट डू मीन बाय ट्रॉपिकल आइलैंड? ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड. डेजर्ट आइलैंड मीन्स ज़्यादा हरा भरा झाड़ वगैरह नहीं सा एक आइलैंड. ट्रॉपिकल रीजन यू मस्ट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी. अर्थ के सेंटर से इक्वेटर जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड में, और वो इक्वेटर के नॉर्थर्न साइड में जाओगे तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड में एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. and in the southern hemisphere also there is another imaginary line which is at 23.5 degree. That imaginary line is called Tropic of Capricorn. Since the distance between these two tropics, तो थोड़ा टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा होता है. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास का जो रीजन है, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड रीजन होता है. ये एरिया को ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं. तो वैसा एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में, आइलैंड इनको दूर से नज़र आया मॉर्निंग के टाइम पे. The next morning they decided to get to the island. They could see beyond the reef. What do you mean by reef? Reef means बहुत ही पत्थर वगैरह ऐसा ऊंचाई में जमा हो गया हो तो एकदम नुकीला जैसा जगह, उसको रीफ कहते हैं. रेंज ऑफ रॉक्स यू कैन राइट. द मीनिंग ऑफ रीफ इज बिग रेंज या ग्रेट रेंज ऑफ रॉक्स. तो बहुत सारे, एक बड़े रीफ के उस पार, मतलब उधर से उनको क्या दिखाई दिया? एन आइलैंड, अ डेसर्ट, ट्रॉपिकल डेसर्ट आइलैंड. सो नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड. वो अगले दिन सुबह इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम ये आइलैंड जाते हैं, आइलैंड तक पहुंचते हैं. विथ मच एफर्ट, यानी काफ़ी मेहनत के साथ, दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स. जो शिप में कुछ टब रखे हुए थे, वो टब के मदद से, टब यूज़ करके दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल. बहुत मेहनत से उन लोगों ने एक वेसल बनाया. वेसल को बर्तन का मीनिंग भी होता है, बट हियर द मीनिंग ऑफ वेसल इज शिप या बोट. उन लोगों ने एक शिप या एक छोटा सा बोट बनाया. बिकॉज द शिप विच दे वर ट्रैवलिंग इन वॉज ऑलमोस्ट डैमेज्ड. आफ्टर दे फिल द टब्स विथ फूड एंड एम्यूनिशन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये टब्स के अंदर पूरे फूड, जितने भी शिप में बचे हुए फूड थे, जिनको जितना उनको ज़रूरत है वो आइलैंड तक पहुंचने का, दैट मच फूड दे कलेक्टेड इन दैट, दे फिल्ड इन द टब्स. एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन बोलेगा तो जैसे अभी बंदूक है तो बंदूक के अंदर हमें बारूद या क्या बोलते हैं, गोली वगैरह डालते, बुलेट्स वगैरह डालते हैं, ऐसा जो
ज़रूरत के वेपन्स के अंदर यूज़ करने वाले चीज़ों को एमिनेशंस कहते हैं. तो कुछ फूड और कुछ औजारें वगैरह भी दे फिल्ड इन द टब्स एंड ऑल द अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू, और जो कुछ भी कीमती चीज़ें थे दैट ऑल्सो दे फिल्ड इन द टब. They could safely carry. वो भी tub, it must not have that much capacity to hold all the things, so they filled that those things which were very important and which they could carry safely. बहुत आसानी से safely ले जा सकते हैं, वैसा कुछ चीज़ें उसमें भरे. They rowed towards the island. उसके बाद they rowed means row the boat, यानी बोट को चलाना, दोनों तरफ चप्पू चलाकर बोट को आगे ले जाना, that is called rowing. तो they rowed towards the island. उन लोग ये जो बनाया हुआ शिप, जो बोट है, वो वेसल है, उसको चलाकर आइलैंड की तरफ गए. Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. उनके beside means बाजू में, साथ साथ उनके बाजू में उनका दो शिप थे, दो डॉग्स थे शिप में. एक का नाम टर्क है और द अदर्स नेम इज जुनो. दे ऑल्सो स्वैम अलॉन्ग विद देम. उनके साथ साथ उन लोग भी नदी से आगे मतलब तैरने लगे. ओके, सो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो उनको जाते हुए और साथ में उनके डॉग भी जाते हुए दिखाई देते हैं. सी इफ यू लुक हियर you can see how they are rowing towards the island, and two dogs are also swimming along with them, means beside, just by the side of the boat. The ship's cargo of livestock. Cargo means, cargo किसको कहते हैं? Goods या items, goods और items. The ship's cargo, शिप में जो माल थे या जो कोई भी सामान थे, आइटम्स थे, ऑफ लाइफ स्टॉक. क्या क्या थे उसमें? लाइफ स्टॉक थे. आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. जो डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, उसे लाइफ स्टॉक कहते हैं. सो कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, गन और गन पाउडर. कारपेंट्री टूल्स. कारपेंट्री टूल्स मीन्स जो लकड़ी को वगैरह काटने और शेप देने के लिए जो टूल्स होते हैं, वो औजार मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट्स. बुक्स. अ डिसअसेंबल्ड पिनेस. और डिसअसेंबल्ड मीन्स सेपरेट किया हुआ. अभी सपोज समझो कि आप लोग इफ़ यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन से कुछ, ऑनलाइन साइट से कुछ चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं. सपोज वी ऑर्डर अ साइकिल एंड द साइकिल विल नॉट कम एज इट इज़. वो साइकिल जैसा आएगा नहीं. इट्स पार्ट्स विल बी डिसअसेंबल्ड एंड पैक्ड इन अ बॉक्स. उसके पार्ट्स सब डिसअसेंबल करके एक बॉक्स में पैक करके आएंगे. आफ्टर रीचिंग हियर, आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स, वी हैव टू असेंबल देम. और उसको हमें असेंबल करना पड़ता है, मीन्स स्क्रू वगैरह डालकर वी हैव टू अटैच देम एंड make into the proper shape of a cycle. In the same way, here they have a disassembled pinnace. Pinnace means a small kind of boat. तो एक डिसअसेंबल्ड पिनेस थे उनके पास. एंड प्रोविशंस मीन्स ज़्यादातर हमारे जो किराने में से हमें मिलने वाले फूड आइटम्स जो होते हैं, उसको प्रोविशंस, वो किराने में से मिलने वाले फूड आइटम्स, ड्रिंक्स वगैरह होता है, दैट इज़ प्रोविशंस. ओके, द फूड आइटम्स एंड ड्रिंक्स, उसको प्रोविशंस कहते हैं. हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड, ये भी बच गए थे. सो cargo of livestock, gunpowder, gun, carpentry tools, books and disassembled pinnace and some provisions also had survived. Okay, तो my dear students, ये वीडियो में बस इतना ही. Tomorrow we'll continue the lesson and try to complete the lesson tomorrow itself. Okay, go through the lesson again. The remaining part of the lesson also should be read before we start continue the lesson in the next video. So आप lesson को अच्छी तरह read करके रखना and try to solve the workshop of the lesson also. Okay, bye.